के बारे में पढ़ा रहा था ना, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्लीज कीप क्वाइट। यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने आपको बोला था कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या होता है। स्फेरिकल मिरर में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक हॉलो स्फीयर होता है। वो हॉलो स्फीयर किस तरह का होता है? इट इज़ जस्ट लाइक ए फुटबॉल, ओके। और वो हॉलो स्फीयर का किसी भी एक पार्ट को हम यदि काट लेते हैं, वहाँ से आपको एक स्फेरिकल सरफेस मिला जाता है। और वो स्फेरिकल सरफेस का दोनों सरफेस को हम यूज़ करके हम इसी तरह का दो टाइप का मिरर बना सकते हैं। वन टाइप ऑफ ए मिरर, यू कैन सी दैट दिस इज वन टाइप ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मिरर होता है, इसका जो इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और आप इसका पीछे का जो सरफेस है उसको जो देखते हैं वो एक्चुअली सिल्वर्ड होता है, और वहाँ पे लाइट रे का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आप देखिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका इनर वॉल में क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट होता है वो लाइट रे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होता है। देन दिस टाइप ऑफ ए स्फेरिकल मिरर जहाँ पे लाइट रे इनर वॉल में रिफ्लेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ए कॉन्केव मिरर। Just like this one, you can see that in my hand there is the presence of another kinds of mirror. Is it? You can see that unlike the previous one, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि in this particular mirror, ये जो मिरर है ना, इसमें आप देखेंगे कि बाहर का जो ओवल टाइप का सरफेस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बट इसका जो इनर वॉल है और इनर साइड है, आप देख सकते हैं कि वो सिल्वर्ड है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ मिरर जहाँ पे आप देखें कि इसका बाहर की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड होता है, बट इनर सरफेस इज नॉट working as a reflector, then this type of a surface or mirror is called as a convex mirror. So once again I just like to tell you that there is the presence of a two type of a mirror. This is called as the concave mirror, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है कि इनर सरफेस ऑफ द मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ ए मिरर जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है आउटर सरफेस में, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए एवरीबॉडी, this is called as a convex mirror. Now you can see I am going to show you one activity related to this spherical mirror, okay, which is in your syllabus. You can see that we are using these kinds of a spoon for taking food during the, you can see during the dinner time, during the lunch time, or any other time. But you can see that by using this particular spoon I can able to show you that how is it working in case of a reflecting surface. Is it? For this particular purpose I like to call two students, anybody of you, one probably one girl, please come. Priyanka, please come here, and also I like to call Podium also come here. Please come here, both of you. Please come. Give your book to others. Please come first. Acha. Both of you, I just, first of all, everybody please look at here. First of all, I like to explain you about this particular spoon. You can see that just like the mirror or spherical surface, it is also having two spherical surfaces, okay, or two reflecting surfaces. You can see that this is the inner wall for this spherical surface. Well, this is the outer wall of this spherical surface. Is it? And when you are going to find that light ray is reflecting by this inner surface of the spoon, this is called as a concave mirror. And in the other way, if this light ray is getting reflected by the outer surface of this particular spoon, then it is called as a convex mirror. So how is the image is forming by the reflection by this particular spoon? For that purpose, I would like to call both of you to please show that how is the image is formed by the reflection of light by this spoon. Okay, for this purpose, I like to take one copy which will work as a screen.
you can see that this is the screen. You please hold this screen. Okay, this side, this come this side. I just like to show you. You can see सीधा होकर पकड़ो. You can see that इसको थोड़ा सा और भी पास में जब लेके आते हैं तो इतना अच्छे से मैंने इसका ब्राइटनेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको दिखाई देगा होगा थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है ना, इमेज प्रोड्यूस हो रहा है ना. दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे बाय दिस पार्टिकुलर कॉन्केव टाइप ऑफ ए मिरर. हैव यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, वन थिंग, बॉयज प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड, सामने आ जाओ. कैन यू एबल टू सी द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस particular spherical surface? No. So please come forward and so you also watch. Okay. I just like to call you to show this particular image by this concave surface. थोड़ा सा और भी सामने लेकर जाओ. Please come forward. दिखाई नहीं. Can you see this one? देखिए, I just like to. Okay. Anybody else? Anybody else wants to come and show this image? Please come. I am holding you. Please come. Come and show it. अच्छा, चलो गर्ल्स आ जाओ. प्लीज कम. आ जाओ. 1 मिनट प्लीज. अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्लीज गिव इट टू मी. अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके साथ साथ आप थोड़ा सा कर रहे. अच्छा, मेरा बात सुन लीजिए. एवरीबॉडी प्लीज कम हियर. प्लीज स्टॉप. सी दैट दिस इज द लास्ट. You please. This is the concave surface of this particular spherical surface or spoon. No. तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि इसके ऊपर लाइट गिर रहा है. इसके ऊपर लाइट गिर रहा है ना, आप मैंने आई थिंक यू कैन एबल टू सी. इसके ऊपर लाइट गिर रहा है. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर लाइट गिर रहा है. तो लाइट मैंने आपको पढ़ाया था कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट में बाउंस बैक करते हैं. बट आपको ये प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि लाइट में बाउंस बैक कैसे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट पे आता है आके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गिरता है, तब ये जो लाइट रेज है ना, दैट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस पार्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या होता है, लाइट में वापस अगेन एयर में जाता है. एंड देन वो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होके इस तरह का स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं, देन यू कैन एबल टू सी द इमेज. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. वन थिंग आई जस्ट लाइक टू टेल यू, लेटर ऑन आई शैल टीच यू इन डिटेल. डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस and that of the screen, you will find that the image which will be formed here, that will be of different size and also its intensity is different. Understood? See, you will find that sometimes the image which will be formed, that is very prominent and you can able to see it very easily, but sometimes you will find that the image is not so prominent. That is actually depending on the distance between this particular reflecting surface and that of the screen. You will find that the image intensity and their size will be different. That's why you can able to see the image of different size. Understood everybody? So you can go there.